Yes, good morning, everyone. Good morning, sir. So today we will focus on the fourth chapter, and this is about the list. So we'll take up the exercise of this list. एक दो क्वेश्चन पेंडिंग है उसके, so we'll take up the pending question of the chapter 3 also. First we'll focus on this exercise of chapter 4. So list, yes, Mehak, आप बताओ, what do you know about this list? Sir, list is a type of data type in which the elements are placed in square brackets. This is mutable. Suitable, and Uh, now the value, different type of data types yes, in it. and we access the values of list using their index values. Clear? So the first question is there. So we'll just take a 1 or 2 minute. So let's others to join in, and then we will start the exercise. So yes. So first question goes to Mehak. Yes, Mehak, आप करो first question solve. Sir, ये ascending order में आ जाएगा इसमें. Ascending order में आ जाएगा. The list will appear in the ascending order. Yes. The second question is, yes, Vanshika, B part. Sir, this is incorrect because for sorted list we have to assign it another variable. Okay, this is incorrect. Very good. तो इसको एक बार करके देख लेते हैं. That is, क्या बताया आपने? ये sorted के लिए क्या करना पड़ता है हमें? We have to assign another variable. Sort और sorted में difference होता है ना, क्योंकि sort में वही list वापस आती है, list sorted में दूसरी list वापस आती है. तो इसमें कौन सी लिस्ट वापस आई है? सर sorted में न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होती है. sort में न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होती है, sorted में न्यू लिस्ट क्रिएट होती है. सो इसका आना था जैसे कि list 2 is equal to sorted list 1. अच्छा, ओके ओके. लिस्ट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आना था लिस्ट 2 इज इक्वल टू, मींस एक नई लिस्ट को असाइन करना पड़ेगा हमें. Yes, sir. And we will have to print this second list. And now the elements are appearing in the sorted order. Very good, Vanshika. So the question has gone to the good one. So now you are, I think, prepared for the final exam. Good, beta, good, acha. And now we move to the, yes. So now we move to the C question. So yes, this question will go to Ishan Kishore. सर इसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने प्रिंट की स्टेटमेंट ही नहीं दी हुई. Very good, excellent. Now people are on their toes and answering like they should answer in the final leg. सर मैंने एक चीज पूछनी है, जो अभी हमारे 18 जनवरी से एग्जाम है वो फाइनल है कि प्री बोर्ड है? नहीं, प्री बोर्ड है. अभी प्री बोर्ड. First there will be pre board and then you will appear for the final exam. ओके सर. थोड़ा चलो वो ठीक है, आउटपुट अपीयर नहीं होगी, बट स्टिल यू एक्सप्लेन ये लिस्ट 1 इसका क्या मीनिंग है, लिस्ट 3 और लिस्ट 1 और ये ऐसा जो किया हुआ है इसका मीनिंग क्या है? थोड़ी जस्ट इलैबोरेट द मीनिंग.
सर फर्स्ट लाइन में तो हमने लिस्ट 1 को एलिमेंट्स असाइन किए हैं, फिर सेकंड लाइन में क्या हो रहा है कि हम लिस्ट 1 को बेसिकली मेरे को इसका टर्म भूल गया, लेकिन हम इसमें कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक जाएगा और इसका इंक्रीमेंट जो होगा वो -2 होगा। तो यानी कि मतलब 10 से जाएगा, 8 से जाएगा, 6 से जाएगा, ऐसे जाएगा। और थर्ड लाइन में हम कह रहे हैं कि लिस्ट 3 जो है वो स्प्लाइस कर रहे हैं हम उसको, स्लाइस। तो लिस्ट 1 के नथिंग टू 3 में वो कह रहा है कि इंडेक्स 0 से इंडेक्स 3 तक, और प्लस लिस्ट 1 3 टू नथिंग में वो कह रहा है कि इंडेक्स 3 से लेके लास्ट एलिमेंट तक। ठीक, थैंक यू, गुड, बढ़िया। देखो आउटपुट आ गई है इसकी, यू सी द आउटपुट इज देयर। लिस्ट तो इसने डिस्प्ले कर दी है, दैट इज 1 2 3 4 5, और लिस्ट 1 ही डिस्प्ले हो गई है हमारे पास कंप्लीट, व्हाटएवर द लिस्ट 1 इज। ठीक है, कोई ऑपरेशन जो है लिस्ट 1 के ऊपर ऐसे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है जी। सो ऑलरेडी इलैबोरेटेड बाय ईशान। So now let's say move back to the next question is D question, and hope yes, who will solve the Shriya is there? Yes, sir. Sir, list 1 में we are given 5 elements from 1 to 5, and then we have to find list -1, that is 5 minus 1 4. So list 1 4, so 4 will appear as a list. तो 4 में क्या है आपको? फोर्थ का सर 4 एज ए लिस्ट होएगा, 4 हो जाएगा ना सिर्फ अपीयर। हाँ, तो फोर्थ इंडेक्स वैल्यू है ना बेटा? Yes sir, fourth index value will be 5, will be the answer. हाँ, 5 will be the answer, yes. So we will be testing these values side by side. Yesterday, Ishan, you shared with me that the link of a game. हाँ जी सर। ठीक है, तो थोड़ा क्लास को भी बता दो उसके बारे में। Just tell about that to the class. We have a lot of time today. कुछ नहीं सर, मैं एक्चुअली गेम डेवलपर हूँ। बताओ पहले अपना कैमरा ऑन करो and tell to the class. हाँ जी, तो सर एक सेकंड मैं लाइट लगा लूं, अंधेरा बहुत है। So ईशान इज सर बेसिकली मेरे को ना, हाँ, जो भी आप ना प्रिसाइजली इनको जो भी काम कर रहे हो ना साथ में, थोड़ा वो भी बताओ इनको। ठीक है सर। सर बेसिकली मेरे को है गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो एज अ करियर भी मैं उसमें जाना चाहता हूँ, तो मैं गेम डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। तो मैंने 7 गेम्स बना चुका हूँ ऑलरेडी, ये कल 7th रिलीज हुई है। फिर 5 गेम्स तो मैंने कोर्स को फॉलो करके बनाई थी, 2 सोलो गेम्स हैं। तो जो कल रिलीज हुई है उस पे मैंने एक पिक्सल आर्टिस्ट के साथ काम की, तो 1 महीना भर की उसमें डेवलपमेंट है। तो बेसिक प्लेटफॉर्मर है जो पूरा मैंने खुद बनाया, उसमें मारियो टाइप ही है, एनिमीज को मारना होता है, कॉइंस कलेक्ट करना है, हिडन आइटम्स कलेक्ट करनी है। की थिंग इज देयर ना, जो भी आप चीज सेंड करते हो ना, सो मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर देख नहीं पाता, बट स्टिल नो द बेसिक थिंग इज दैट आपका इंटरेस्ट जो है ना, दैट इज नो, 2 चीजें होते हैं, जैसे जब हमारा इंटरेस्ट और हमारा काम अगर दोनों की मैचिंग हो जाए ना, दैट्स नो डेडली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कि आपका गेमिंग की साइड इंटरेस्ट है, एंड इफ यू विल परस्यू योर कैरियर टुवर्ड्स दिस साइड ना, एंड यू नो यू सी द स्कोप ना, नाउडेज हर कोई जो बच्चा है 3rd ऑनवर्ड्स, 3rd क्लास में पढ़ रहा है, 4th क्लास में पढ़ रहा है, तो उसका गेमिंग में इंटरेस्ट है। तो जैसे हम न्यू जनरेशन में, यू नो दैट न्यू जनरेशन को जो भी हम काम करेंगे उसको न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग को फोकस करके करना पड़ेगा। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइक समवन क्लास लेवल के ऊपर इसको डिस्कशन करने का क्या फायदा होता है, दैट इज नो दैट इफ द पीपल इन आवर क्लास आर इंटरेस्टेड इन द सेम प्लेटफॉर्म, तो आप क्या करते हैं, आप लेटर ऑन कोलैबोरेट कर सकते हो किसी भी काम में। अगर मेरे को लगता है कि मेरी कोई गेमिंग की क्वेरी है, तो आई एम नॉट द सूटेबल पर्सन टू आंसर ना ही इज द सूटेबल पर्सन जिसका इंटरेस्ट है उस चीज में। ठीक है, गेमिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप हर एक चीज में आप उसका आंसर कर पाओगे।
क्लियर? तो ये आंसर आप तभी कर पाओगे इफ यू हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट साइड। या अ फ्यू डेज बैक वंशिका गेव द आंसर ऑन दैट स्टार्टअप के ऊपर आंसर किया है, तो वो तभी आप आंसर कर पाओगे जब यू नो दैट अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, थोड़ी नॉलेज है आपको उसके बारे में। सो इन +1 जो भी बच्चा +1 +2 में एक क्वेश्चन का आंसर कर लेता है, दैट व्हाट ही हैज टू परस्यू इन हिज कैरियर, दैट इज द बिगेस्ट आंसर। 2 साल बहुत है एक चीज को आंसर करने के लिए, कि जैसे ईशान हैज बेसिकली बिल्ड अपॉन कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एंड ही इज नॉट वर्किंग। ये जो डिस्कशन अभी हम उसकी जनवरी में कर रहे हैं, बट ही आई हैव सीन वो मार्च में भी वो गेम्स के ऊपर काम कर रहा था। इज नॉट द केस कि वो क्लास शुरू होगी तो तब मैं स्टार्ट करूंगा अपना काम। तो जो आप अपना काम करते हो उसमें आपकी मोटिवेशन होती है, आप क्लास की थोड़ी वेट करते हो नवदीप सर पढ़ाएंगे फिर मैं गेम डेवलप करना शुरू करूंगा। सो यू आर इंडिपेंडेंटली डूइंग दीज थिंग्स। और क्लास लेवल पे उसका डिस्कशन करने का एक ही एम है, दैट यू नो दैट वी कैन कोलैबोरेट क्लास में। मतलब ये नहीं कि हम आके बस क्लास अटेंड की और चले गए। सो विद योर नो सिमिलर इंटरेस्ट आप लोग उसके ऊपर काम भी कर सकते हो। सो दैट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट। Now we moving to the next question. So Harshita will answer this question number 2. पढ़ दो बेटा, सभी के लिए पढ़ दो हर्षिता आप। Okay, sir. Question 2. Consider the following list, my list. What will be the elements of my list after each of the following operations? तो लिस्ट हमें गिवन है, तो ये लिस्ट में फर्स्ट हमने 2 एलिमेंट्स को अपेंड किया है इन द गिवन, तो ये हो जाएगा। Yes, sir. पक्का? अभी टाइम है आपके पास। तो जस्ट आई एम शिफ्टिंग दी फर्स्ट इज, ये जो हमारे पास लिस्ट थी और उसके बाद है अपेंड किया हुआ है लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट्स वी हैव अपेंडेड एंड हर्षिता सेइंग इट विल वर्क। हर्षिता अभी टाइम है आपके पास। तो कोई बात नहीं, वंशिका ने भी ऐसे ही किया था। वंशिका हो जाएगा ये अपेंड? Yes, sir, nested list बनेगी। नेस्टेड लिस्ट बनेगी। सो नाउ वी गो विद द तो एरर तो नहीं है इसमें कोई? प्रिंट हाँ, बेसिकली हमने वो प्रिंट नहीं करवाया ना, तो प्रिंट भी करवा के दे देते हैं। इसी को प्रिंट करवा लें। तो ये नेस्टेड लिस्ट जो है हमारे पास बन जाएगी। दैट इज द राइट आंसर। सो दिस विल बी अपेंडेड एंड दिस विल बी अपेंडेड एज ए नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। और वैसे हम अपेंड फंक्शन से क्या करते हैं, बेसिकली वी ऐड एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, जैसे लेट्स से वी हैव 78 एंड the 78 will be appended at the last. So yes, Harshita आप ही करो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट इज extend. Sir, this will also work. होगा क्या? सेम आंसर आएगा हमारा। वर्क तो हो जाएगा, वर्क में कोई डाउट नहीं है, बट व्हाट विल बी द चेंज इन द आंसर? सर इस बार नेस्टेड लिस्ट नहीं बनेगी। यस यस, इस बार नेस्टेड लिस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है। दिस टाइम दिस विल बी द पार्ट ऑफ द लिस्ट, नॉट द
नेस्टेड लिस्ट नहीं बनेंगे, दैट्स द डिफरेंस। और डिफरेंस भी हमने बताना है, अदरवाइज तो अपेंड और एक्सटेंड सेम बन जाएंगे फंक्शन हमारे पास, if there is no differences there. So now we move to the next question, and let's say who takes the charge of the next question is Jasmine. So Jasmine, ready? Yes, sir. So question number 3 goes to Jasmine. What will be the output of the following code? Following code की आउटपुट बतानी है आपने। एक लूप भी लगी, पहले एक लिस्ट है, फिर उसके बाद एक लूप है, फिर उसमें बेसिकली इवन नंबर्स सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें से, और वो बाद में आउटपुट क्या आएगी बता दो बस। काफी मैंने इलेबोरेट कर दिया इसको। Yes, sir. डिफिकल्ट है? No, sir. Sir, it will print all the even numbers 2, 4, 6, 8, and 10. हाँ, डरो ना, आंसर करो, आपको आता है आंसर, आपको व्हाई यू आर बेसिकली। So indentation should be there like this, and just run this one. So now we have the जो बेसिकली पहले 0th पोजीशन पे है, फिर 3rd पोजीशन पे है, ठीक है, फिर एक पोजीशन छोड़ के सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर? बेसिकली इंडेक्स वैल्यू इवन होनी चाहिए, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू बिकॉज हमने 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो पहले इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, इसकी 4 है, इसकी 6 है, इसकी 8 है, एंड लाइक दिस, ठीक है। और चलो इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देते हैं, एंड वी विल ब्रिंग इन समवन एल्स into the picture, and let us say the question now goes to Ajay Pratap. Are you there? Yes sir. हाँ अजय प्रताप, अब बताना इसकी आउटपुट क्या आएगी। आज टाइम पे आए थे या लेट आए थे आज? तो टाइम पे आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू विल आंसर, आई एम श्योर यू विल आंसर। सर इसमें ऑड आ जाएगी सारे नंबर। ऑड नंबर तो पहले डिस्प्लेड है यहाँ पे 1 3 5 9 7। इसकी आउटपुट क्या आएगी? नहीं सर, आउटपुट सारे SS। ठीक है, आपका आंसर सही है कि अब इंडेक्स वैल्यू ऑड होगी बट नंबर यहाँ पे इवन डिस्प्ले होंगे। सो यू आर राइट एंड गुड। सो नाउ यू विल फाइंड दिस वन। ठीक है, सीधी सी बात है, आप अल्टरनेट वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द क्वेश्चन नंबर 4 इज, so let's say this question goes to Mehak. Yes, first question. पर इसमें 3 से स्टार्ट होके 3 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट होके जो आगे वाली सारी लिस्ट है वो डिलीट हो जाएगी। इसमें 3 इंडेक्स वैल्यू 4 की है, ठीक, तो 4 5 6 7 8 9 लिनियर डिलीट। Good, good, good. So let's say we'll test this one also side by side, and ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएंगी और बाकी जो लिस्ट वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। गुड, दैट्स फाइन। And let's say we move to the second part. Yes, Vanshika, next part goes to you.
Sir, elements after 6, including 6 and after 6 will be deleted. Will be deleted? Sir, will be displayed. Will be displayed. ठीक 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 है ठीक. Let's say we move to list में हमारे पास कोई, yes, दिलबाग सिंह is there. Yes, दिलबाग. C question goes to you, Mr. Dilbag. Dilbag and Tarun Jot. Sir, हाँ, 6, 7, 8, 9, 10. तो इसका आंसर क्या आएगा? माई लिस्ट. कैसे आएगा इसका आंसर? सर बी का. बी का नहीं, सी है. मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ. ये यहां से देखो आप इसको. तो लुक एट द क्वेश्चन. यस, यहाँ पे पड़ा है क्वेश्चन. नाउ ये जो क्वेश्चन डिस्प्ले की हुआ है, इसको आंसर करना है. सर 2 की इंक्रीमेंट होगी. और 2 की इंक्रीमेंट तो होगी. होगा क्या? आउटपुट में क्या आएगा? 0, 0. सर 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, ये वाले एलिमेंट जो तूने बोले हैं ये डिलीट हो जाएंगे. 1, 3, 5, 7, 9 ये डिलीट हो जाएंगे. ठीक है, पहले देखो, पहले जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 की इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, फिर ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा. ये सिलेक्ट हो जाएंगे, ये डेल के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये डिलीट हो जाएंगे, और बाकी जो बचेगा दैट विल बी डिस्प्लेड. ठीक है, क्लियर है भाई? तो यस नो बोल दो कुछ तो आगे. So now we move to the fifth question, the difference between the append and the extend. So yes, हर्षिता आप ही बताओ, अभी आपने किया था इसको आंसर. सर append फंक्शन में सिर्फ सिंगल एलिमेंट ऐड होगा एंड ऑफ द लिस्ट में, एंड इन extend फंक्शन वी कैन ऐड a list of elements. और अगर हम अपेंड में मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट की फॉर्म में ऐड करते हैं तो मींस दैट बिकम्स दी वो लिस्ट विद इन ए लिस्ट बन जाएगी. ठीक है, यस सर. नाउ वी मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 6. हाँ यस, जैस्मिन करो आप इसको आंसर बेटा. सर फर्स्ट वाले में तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा लिस्ट 1 into 2 एंड सेकंड वाले में लिस्ट 1 इज इक्वल टू एक क्वेश्चन एट ए टाइम करो. फर्स्ट ए की आउटपुट क्या आएगी हमारे पास? सर एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई होगा. लिस्ट 1 into 2 है हमारे पास. तो you are saying that elements will get multiplied by 2. So this is for repetition of the list. अगर हम इसको यहाँ पे 3 लिखेंगे, so the list will be repeated 3 times. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन विल नॉट मल्टीप्लाई विद द एलिमेंट्स. ऑलरेडी ये हमने जो कल किया था कंकैटिनेशन के लिए, प्लस हाउ द प्लस वर्क्स एज ए कंकैटिनेशन ऑपरेटर. सो
let us say now look at the second question, B part. List 1 into equal to 2. So maybe finding it difficult, and we check it out. List इक्वल टू 2, तो इसका तो सबसे पहले की मीनिंग क्या होता है? दिस इज इक्वल टू लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 इंटू 2, यही होता है इसका मीनिंग? यस महक? यस सर। क्या आएगी इसकी आउटपुट? सर सेम ही आएगी जो ऊपर वाले में आई। सो ठीक है। सो इफ यू राइट इट लाइक दिस, ऐसे करें तो भी ठीक है, एंड इफ लेट्स से वी डू इट लाइक दिस, दोनों केस दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। सो लेट्स से नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट। सो यस ईशान, यू आंसर दिस वन। तो ऑलरेडी हमने इसको कर लिया है, दैट इज इसको एक्सप्लेन जो हमने किया है। सो यू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। The record of a student, name, roll number, marks in 5 subjects, and percentage of marks is stored in the following list. S3 record is equal to Raman, A 36. You just move to the next part. Write Python statements to retrieve the following information from the list. Percentage of the student. तो बस आपने मेरे को कोड बताना है कैसे। यस, कैसे निकालोगे? तो ये हम प्रिंट st record फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 1 2 3 स्क्वायर ब्रैकेट में 3 तो इससे हमारी क्या परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दैट इज and percentage of marks in 5 subjects and percentage is given, percentage of the student। ठीक है, तो ये 78 वाले को आप डिस्प्ले करवा रहे हो ना? हाँ जी सर, ये बात ठीक है। So you will get the percentage here. Now we move to the second B part. Yes, this is B part. Marks in the 5th subject. So this is the first subject, second, third, fourth, fifth. बताओगे? हाँ जी, आई थिंक सर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3, फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5। सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स में पहले 2 फिर 5। पहले आएगा हमारे पास 2 आएगा ना, 2 फिर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। जी सर, फिर इसमें 5। सर ये जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है वो पहली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, लाइक दिस। हाँ जी सर, वो क्लोज कर दो सर स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ जी int object is not, ये लिस्ट विद इन ए लिस्ट को कैसे एक्सेस करें? दिस इज बेसिकली लिस्ट विद इन ए लिस्ट है ये। So int object is not subscriptable.
Oh, sorry. ऐसे नहीं आएगा ये। सर ट्राई करो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं दोनों अलग अलग, फिर शायद हो जाए। Oh, sorry, 4 आएगा ये। ठीक है, so this is how, ठीक है, because the index value starts from 0, तो 56 को एक्सेस करने के लिए 0 है और 69 के लिए 4 है। So that is how we are going to access list within a list. Now we move to the third question is maximum marks of the student. Yes, anyone, कोई भी बता सकता है, anyone who can answer this one. How to fetch the maximum marks? Yes, Vanshika. एक ही स्टेटमेंट में करना है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं? चलो पहले वंशिका का आंसर ले लेते हैं, then we will move. Yes, वंशिका, उसके पास आंसर है। मैं भी सर एक अलग वेरिएबल को असाइन करेंगे, जैसे कि v इज इक्वल टू स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्या करेंगे? किसी भी वेरिएबल को v इज इक्वल टू, यस सर, चलो एबीसी रखते हैं। एबीसी इज इक्वल टू स्टूडेंट रिकॉर्ड स्क्वायर ब्रैकेट 2, सर देन मैक्सिमम ऑफ एबीसी। अच्छा, प्रिंट मैक्सिमम ऑफ एबीसी। प्रिंट में मैक्सिमम ठीक है। सो वी गॉट द मैक्सिमम मार्क्स और नॉट? ठीक है, सो 99 इज द मैक्सिमम। सो फर्स्ट शी हैज बेसिकली पूरी की पूरी लिस्ट को असाइन कर दिया टू अ डिफरेंट वेरिएबल एंड देन वी हैव फाइंड आउट द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दैट। So this logic is clear, but there can be multiple logics also. Clear? So this is not the one and the final case. Maybe you can look upon and see how we can access the maximum. एक max हमारे पास function भी है, and we go to the directly to the student record and can apply the max function also over there. So let us try. The next part is roll number of the student. So yes, Jasmine, करोगे try roll number of the student? Yes, sir. Yes, so I will remove this and let us say we are here. We have to just print the roll number of the student. Sir, it will come print, then st record, then in square bracket we will write 1. So this is how we will fetch the roll number, and the next part is change the name of student from, ठीक है, उसका नेम चेंज करना है हमने। So yes, Jasmine, आप ही बताओ how to change the name. Difficult है? Yes, sir. So we will use the past statement, and yes, this question goes to Ishan. Yes, Ishan. Yes, maybe Ishan is not available, and yes, Vanshika.
student record square bracket 0 is equal to Raghav. Okay, so the name of the student has been changed now. So like this, you try the questions. Today we have started and focused on the list chapter, and 2-3 questions of the previous chapter 3 are pending. Clear? So you just have a look. उसके अंदर मैंने देखा जो सबसे थोड़ा challenging question था, that is how to basically print the एडमिट कार्ड ऑफ स्टूडेंट. जैसे आपके पास अपना एडमिट कार्ड है ना, पुराना आपके पास एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, तो उस तरह का एडमिट कार्ड है उसमें बना हुआ, वो एडमिट कार्ड प्रिंट करना है आप लोगों ने, ठीक है. तो एक वो क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना एंड आल्सो प्रैक्टिस. अभी आप लोगों के पास रिसोर्स है, तो सभी स्टूडेंट्स के पास ये सॉफ्ट कॉपी है अवेलेबल. जैस्मिन, ये सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है ये एनसीईआरटी बुक्स की? नो सर. तो बेटा क्वेश्चन आप इधर ही क्लास के अंदर आके करोगे, फिर तो घर जाके कुछ भी नहीं करोगे अब घर पे. यस महक, आप बताओ कहाँ पे अवेलेबल है ये एनसीईआरटी की बुक्स, कहाँ पे अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी? समुद्र में है? तो कहाँ पे है? यस, वंशिका विल टेल. KVPY साइट पर. हाँ, गूगल का यूज करो बेटा, गूगल का भी यूज करो, बड़ा अच्छी चीज है. गूगल को यूज करके वो डाउनलोड करो. आई हैव शेयर्ड द लिंक्स नंबर ऑफ टाइम्स. if you are not able to access the books, then ask me, then I can share that books again to you. ठीक है, बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. ये हमने इसके ऊपर कौन सा कोई एक्सपेंसेस करने हैं, ठीक है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, कल संडे है तो कल तक आप लोग डाउनलोड करो एंड यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. मेरे पास भी अब रिसोर्स आ गया है क्वेश्चन डालने के लिए, एंड यू विल फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम. देखो एनसीईआरटी इज ए स्टैंडर्ड, ठीक है, तो यू नो दी लेवल ऑफ क्वेश्चन इज क्वाइट गुड ओवर देयर, ठीक है. तो एक तो है सुमिता अरोड़ा वाली भी बुक है हमारे पास, उसमें भी एक्सरसाइज है, एंड एनसीईआरटी इज यू नो द स्टैंडर्ड एक्सरसाइज. सो वी विल सॉल्व एंड कंटिन्यू विद दिस फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स फ्रॉम मंडे, ठीक है. सो मंडे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. तो सारे डाउनलोड कर लेना ये रिसोर्स. थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास इन ए पार्टिसिपेटिव वे. थैंक यू बेटा. Thank you, sir. थैंक यू.